Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are doing linear equations, chapter 5 of T1. We have solved linear equations having fractions and without fractions both. And in both the scenarios, what was special? Left hand side is equal to right hand side. Whatever you are doing on the left hand side, it has to be done on the right hand side also. And then while doing fractions, I was explaining we can cross multiply, we can take LCM, whatever the scenario is, depending on the scenario, we can do the likewise and we can solve our linear equations. But the special thing, but the most important thing is always keep in mind that the left hand side has to be equal to the right hand side, and when the variable or the constant is going from left to right or right to left, it changes its sign. Okay. Now let's come to the formulae and exercise 5b of chapter 5, and we'll be doing different questions. In every question, a formula will be given to us, values will be given to us of some variables, and we'll apply those values and we will try to find out the value of the unknown. So let's take the first example and try to solve these linear equations. So the exercise is 5b, and which is on page 121, and I'm going to do question number 2. If a is equal to y square minus xz over 5, find a when x is equal to 2, y is equal to minus 1, and z is equal to minus 3. Okay, so this is the question. It's very simple. Values of some variables are already given and we have to find the value of the unknown, which is in this case a. सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है और ये बहुत ही सिंपल है. a is equal to this. अब आपने क्या करना है? a is equal to y की वैल्यू क्या गिवन है? -1. तो ये स्क्वायर भी है, तो -1 स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या है? 2. मैं पैरेंथेसिस इसलिए लगा रहा हूं सो दैट वी आर क्लियर कि हमने किस वेरिएबल की कौन सी वैल्यू लगाई है और उसका क्या साइन है. सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट. सो फर्स्ट टाइम जब हम वैल्यूज को पुट कर रहे हो तो इट्स गुड टू अप्लाई पैरेंथेसिस, ताकि हमें भी श्योरिटी हो जाए कि हमने कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं की. एंड -3 over 5. Okay, so -1 square, -1 into -1, positive 1. Okay, 1. And then this is minus, this is minus. Minus minus will be plus. And 2 into 3 is 6. So plus 6 over 5, which is equal to 7 over 5. And 7 over 5 in the form of mixed fraction will be 1 whole 2 over 5. So this is the value of a, and we have solved this formula and by applying the given values. Okay, let's take another example. Question number is 10. If 1 over a minus 1 over b is equal to 1 over c plus 1 over d, a is equal to 1 over 2, b is equal to 1 over 4, d is equal to 1 over 5, and it is minus as well. Find value of
C. So, okay, this is question number 10 of exercise 5B. Equation is given to us, which is 1 over A minus 1 over B is equal to 1 over C plus 1 over D. Values of A, B and D are given, which are of course in fractions, and हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, C की. अच्छा, अब ये वैल्यूज हमने, ये जो A, B और D की वैल्यूज गिवन हैं, ये हमने अप्लाई करनी है. लेकिन ये अप्लाई करने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा और फिर वो हमें करना आसान हो जाएगा. अगर मैं ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है 1 ओवर A, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 डिवाइडेड बाय A, लिख सकते हैं ना, कोई इसमें मसला तो नहीं, यही चीज हो रही है ना, 1 डिवाइड बाय A माइनस 1 डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू, क्योंकि C की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको मैं वैसे ही लिखूंगा 1 ओवर C प्लस 1 डिवाइडेड बाय D. ओके, अच्छा, अब मैं वैल्यूज अप्लाई करूंगा. 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 4 is equal to 1 over C plus 1 divided by minus 1 over 5. क्योंकि ये नेगेटिव था तो मैंने इसको भी पेरेंथेसिस में लिख लिया. अच्छा, अब वी नो दैट अरिथमेटिक्स में क्या होता है कि जब किसी नंबर को किसी से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ये डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो इसके बाद में जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड करना है उसको हम चेंज कर देंगे. जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, इसको यानी रिवर्स कर देंगे. डिवाइड करना है हमने 1 ओवर 2 से, तो ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये नंबर 1 ओवर 2 से 2 हो जाएगा. ये अरिथमेटिक में होता है इस तरह. ठीक है, तो 1 इंटू 2, क्योंकि मैंने साइन चेंज कर दिया, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आ गया और ये 1 ओवर 2 चेंज हो गया 2 में, ये रिवर्स हो गया. माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 ओवर C प्लस 1 इंटू, नाउ दिस इज, साइन इसका नहीं चेंज होगा लेकिन ये -5 हो जाएगा, -5. ओके, अब ये क्या हो गया, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 ओवर C प्लस 1 इंटू -5 इज -5. ओके, सो 2 minus 4 is minus 2 is equal to 1 over C minus 5. ओके, ये -5 इधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये जब साइड चेंज करेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 ओवर C. सो 3 इज इक्वल टू 1 ओवर C. अब ये C इधर आ जाएगा, 3 उधर आ जाएगा. ठीक है, तो C इज इक्वल टू 1 ओवर 3 एंड वी हैव सॉल्व. ओके, तो थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट दिया था और उससे ये काम करना आसान हो गया और वी हैव द वैल्यू ऑफ C जो कि अननोन थी वो हमने फाइंड आउट कर ली. ओके, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. आसान वाला क्वेश्चन लेता हूं. Now the question number is 13. If A is equal to B over C minus B, find B when A is equal to 3 and C is equal to 10. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो क्या होगा, A की वैल्यू गिवन है 3 इज इक्वल टू, हमने फाइंड करना है B को फाइंड करना है और C की वैल्यू भी गिवन है, तो B ओवर 10 माइनस B. ओके,
अच्छा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 के नीचे इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कल मैंने पिछले प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, फ्रैक्शंस हमारे पास होती हैं, वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। सो 3 into 10 minus b is equal to b. So 30 minus 3b is equal to b. Okay? So what will happen now? मैं इस चाहूं तो मैं इस b को इधर ले आता हूं, 30 को इधर ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -3b माइनस b, ये b इधर आ गया और ये 30 उधर चला गया, तो -30, ठीक है। तो -4b इज इक्वल टू -30, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 30/4 विच इज 15/2, और या इसको हम आंसर इस तरह दे सकते हैं, इट इज 7.5, या और 7 होल 1/2। तो मुख्तलिफ तरीकों से हम दे सकते हैं, इन डेसिमल, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिस तरह भी आप चाहो दे सकते हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस फॉर्मूले को हम क्लोज करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सेशन था, लेकिन इसमें ये कि वैल्यूज अप्लाई की और फिर वही जो प्रीवियस नॉलेज था कि हम किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, वही नॉलेज अप्लाई करते हैं, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कभी साइड्स वेरिएबल की चेंज करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। Question number is 14. If m is equal to n into x square minus y, sorry, this is m multiplied, is equal to 5n over z. Okay, find value of n when m is equal to 6, x is equal to -2, y is equal to -3, and z is equal to -5. Okay, so let's apply the values. So 6 into n की वैल्यू गिवन नहीं है, फाइंड करनी है, n वैसे ही रहेगा। x की वैल्यू गिवन है -2 और इसको स्क्वायर करना है, माइनस y की वैल्यू -3 है, ओके, ओवर -5 इज इक्वल टू 5n, ठीक है। ओके, 6 into, now -2 का स्क्वायर, -2 into 2 is +4, okay, 2 into 2 is 4, but यहाँ पे -2 है, तो -2 into -2 is also +4, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4n, minus minus is plus, +3 over -5 is equal to 5n। अच्छा, यहां पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके नीचे क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 into 4n plus 3 is equal to 5n into -5। इधर क्योंकि 1 आया, ये 1 था, इधर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हो गया 24n plus 18 is equal to -25n। 18 को उधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो ये क्या होगा, 24n plus 25n is equal to -18, so 49n is equal to -18, so n is equal to -18 over 49, okay, so this is our value of n। So
So we have solved it. I hope that you have understood whatever I was explaining, how to apply the values and solve, because we were applying the previous knowledge, how to solve the linear equations which may have a fraction or which may are without fractions. Okay, so I'm going to close the 5B exercise here, and in the next I'll be solving some word problems involving linear equations, and I'll be doing little more examples because I know that the word problems always give some trouble. So hope you have understood this session, and do give me feedback if the things are going right or not. Okay, thank you very much.